गत 7 अगस्त को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पूज्य सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के आमंत्रण पर कोयंबटूर पहुंचे। कोयंबटूर एयरपोर्ट पर पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी पहुंचे ईशा फाउंडेशन आश्रम, जहां पूज्य सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने दोनों का स्वागत किया। इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी ने ईशा फाउंडेशन परिसर का भ्रमण किया। पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी ने इस परिसर का भ्रमण किया और आदि योगी भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए। ईशा फाउंडेशन के सदस्यों और शिष्यों ने स्वामी जी व आचार्य जी का अभिनंदन और आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके साथ समय बिताया तथा कुछ समय के लिए ध्यान साधना भी की। भ्रमण के पश्चात स्वामी जी व आचार्य जी पूज्य सद्गुरु जी के साथ पहुंचे सभागार में, जहां पारंपरिक विधि अनुसार स्वागत अभिनंदन किया गया। ईशा फाउंडेशन के छात्रों ने स्वामी जी के समक्ष विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात पूज्य सद्गुरु स्वामी जी व आचार्य जी ने उपस्थित शिष्यों को अपना उद्बोधन दिया। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे। ॐ श्री महादेव शंभो। It's a great privilege that we have Baba with us and Acharya ji. Probably there's nobody in the country who doesn't know about Baba Ramdev. We will leave him alone. But what Acharya ji has created in this country in the form of this Patanjali brand, in a matter of just about probably 12 years or 13 years, is it? 12, 13 years' time, it's become one of the biggest brands in the country.
bringing a totally new dimension to India's business. Over $2 billion business and see, here's the CEO, look at him. CEO without salary. So, CEO without salary, CEO without suit, without jacket and without tie. This is an exemplary model of a Desi company, an Indian company really doing well. They're not just selling Desi ghee, this is a Desi brand, which I mean, it is something that the business community in the world, particularly in India, has to learn, that with such simplicity, but with absolute devotion towards what you're creating, what can be created is so phenomenal. In this FMCG arena where they are, as far as I know, I don't think no company in the country in a matter of 10–12 years' time has become a $2 billion company as they have become, and they have the largest food processing industry in the world. So, these are things everybody sees, the figures are out, in the economic numbers are out, everybody knows these things, but what people do not know is, I had the privilege of visiting their lab, what they're creating there. They have kind of documented 72,000 medicinal plants, which has never been done before in a most scientific manner. Look at the simplicity, one man is shirtless, another man like this. This man is production and execution, this man is marketing. Absolutely. This is something that India has to learn from. I've been speaking about this, but these are exemplary models of that to run major businesses, you don't have to strangle yourself with a tie. There is a norm in this country right now, unfortunately, that if you have to attend a boardroom, you will not be allowed to enter a board meeting without a tie and a jacket in India, okay? So I was speaking to certain group of people who are in business in our Insight. Every November we have a business meeting here with over 200 CEOs. I was asking them, see, a CEO or a board… somebody who's in the board of a major company means we believe that he's a sensible man or woman, a sensible person who will take the right decisions because everybody's money has been invested, they will do the right things. But somebody who wears a jacket and a tie in 40 degrees centigrade, I don't see how he is a sensible human being. So, what you're seeing here, I believe, is the future of India's business houses. So, I will leave it to Baba and Acharya ji to say a few words. We can understand English, but we cannot speak very well English. So I will speak in my own language. I can speak very well Sanskrit or Hindi. And now Guruji is speaking very well Hindi. This is great for us. तो पहले तो मैं पतंजलि योगपीठ की ओर से एक शर्टलेस सन्यासी, कमीज वाले सन्यासी से आचार्य जी से कहूँगा कि पूज्य हमारे सद्गुरु जी, जो हमारी गुरु परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा के गौरव हैं, और केवल दक्षिण भारत नहीं, केवल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के नहीं, ये डिवाइन वर्ल्ड के लीडर हैं। शिव तत्व सृष्टि का श्रेष्ठतम तत्व है और आदि योगी की ये पुण्य धरा है, और आदि योगी की इस पुण्य धरा पर जो स्वयं योगी स्वरूप हैं, जो शिव स्वरूप हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और भगवान युगों युगों के बाद
युगों युगों के बाद ऐसे दिव्य महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण करते हैं। इनका जन्म नहीं हुआ, इनका धरती पर अवतरण हुआ है। और ऐसे महापुरुष का मैं पूज्य आचार्य जी से कहूँगा कि जो बहुत तैयारी करके कुछ विशेष द्रव्य लेकर के आए हैं। ये पशुपतिनाथ मंदिर से स्पेशल मंगवाया रुद्राक्ष नेपाल से, क्योंकि नेपाल जो है पूज्य आचार्य जी का भी माता पिता का पुण्य भूमि है। और ये पवित्र चांदी का शिव लिंग का चतुर्मुखी शिवलिंग का दिव्य स्वरूप है। आई एम डूइंग योगा प्रैक्टिस। इन योगा देयर इज नॉट रिक्वायर्ड लैंग्वेज, सो आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट लैंग्वेज। I am teaching breathing exercise. So I am teaching breathing exercise, Surya Namaskara, the Indian postures, and Omkara Dhyana. Yoga in Karma Yoga is my life. And this brand, this old type of prosperity, ये सब कुछ ये योग का बाय प्रोडक्ट में मानता हूँ। और गुरुजी तो सदगुरु जी जो इन छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं सारे आर्ट्स, योगा, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, हृदय का बल, संवेदना का बल, तो शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल, सब प्रकार के बल की वृद्धि करके इस राष्ट्र को और इस पूरी समष्टि को, पूरे एग्जिस्टेंस को बलवान बनाने और महान बनाने का काम सदगुरु कर रहे हैं। गुरु जी की 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सिर्फ 3? तीन में तो पूरी सृष्टि आ जाती है। सत्व, रज और तम, इसी का परिणाम पूरा अस्तित्व है। तो सदगुरु जी में, इनके 3 में सारा सृष्टि समाहित है। कोई भी मैंने देखा भारत में 99 जो % लोग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जो भी राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने वाले तत्व हैं, उसमें जो लगे हुए लोग उनको क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। चाहे कोई फिजिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली कोई स्ट्रांग है, तो लोग उसको क्रिटिसिज्म करते, उसको निराश करते, उसको लोग निंदा करते। धनवान होना मानो उसको गाली देते, धनी को। मैंने बड़े लोगों में, चाहे वो किसी भी फील्ड के बड़े लोग हैं, सदगुरु जी को इस रूप में देखा है कि वो कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसको हमेशा आशीर्वाद देने का काम करते हैं और उसको आगे बढ़ा करके, उसको आगे बढ़ता देख करके खुश होते हैं। ये भारत के लिए नहीं, यह मानव मात्र के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, कि हम डिस्ट्रक्टिव काम ना करें, प्रोग्रेसिव हमारी थॉट प्रोसेस हो, हमारे हर चीज़ के अंदर हम आगे बढ़ते हुए लोगों को और उभारें, समृद्धि को सम्मान दें, रेस्पेक्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट, रेस्पेक्ट फॉर नॉलेज, रेस्पेक्ट फॉर पावर को, प्रॉस्पेरिटी को, डिविनिटी को जब हम रेस्पेक्ट देते हैं, चीज पड़ती है। और दूसरी बात, गुरु जी, सदगुरु जी का पूरा संस्था, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका
सारे उपदेश, उस सब में एक बात कॉमन है कि सब कुछ आपके भीतर है और अपने बल का परिष्कार करो, अपने नॉलेज का परिष्कार करो, ज्ञान का, अपनी चेतना का, अस्तित्व का परिष्कार करो। तुम सभी के अंदर वो शिव तत्व है। ये जो बाहर का शिव तत्व, ये सबका शिवत्व बन जाए। आदि योगी एक प्रतीक है और आदि योगी हम में उतर जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी हम चल करके आ रहे थे तब सदगुरु जी कह रहे थे, आने वाले 100 वर्षों में पूरा विश्व का नेतृत्व करने में भारत समर्थ होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो दक्षिण में ईशा फाउंडेशन है, उत्तर में चाहे पतंजलि योग पीठ है, और ऐसे हजारों पुण्य आत्माएं जो काम कर रही हैं, ये भारत को उसी ऊंचाई पर लेकर के जाएंगी जिसका ये भारत है। तो सदगुरु जी केवल यह 100 फीट का आदि योगी का प्रतिमा कितना? 112। तो 112 ईयर में तो भारत दुनिया के शिखर पर होगा, ये उसका प्रतीक है। वो शिवत्व सारे सृष्टि में हो, और उसके लिए जो तीसरा बड़ा तत्व है, हम प्रकृति की ओर लौटे। प्रकृति हमारी माँ है, नेचर इज अवर मदर, एंड मूल मातृ तत्व वो प्रकृति। मनुष्य ने इस विनाशकारी विकास, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट में, विनाशकारी विकास में एयर, वाटर, सॉइल, सोल, फूड, सब कुछ को पॉल्यूटेड कर दिया। अभी यूरोप के कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में 45 डिग्री टेम्परेचर, ये बहुत बड़ा अलार्म है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्रूएल्टी है, ये क्रूरता है। चाहे वो नदी अभियान, चाहे वो वृक्षारोपण, यहां कितने बिलियन ट्री इस पीछे की पहाड़ पर लगाए। मुझे आश्चर्य होता है, कुछ लोग पवित्र कार्य को, ईश्वरीय कार्य को, एक दिव्य सृष्टि को भी देखने की दृष्टि नहीं है जिनकी, कि ईशा फाउंडेशन ने कुछ पेड़ काट दिए। मैं आचार्य बालकृष्ण जी को पहली बार आई, क्योंकि मैं पहले 2 टाइम से आ चुका हूं। मैंने आचार्य बालकृष्ण जी को कहा कि आपको कोई निशान दिखता है कि यहां पर कोई ईशा फाउंडेशन में पेड़ कटा है? करीब करीब 60 लाख पेड़ तो यहां लगाए हैं, और पूरे देश और दुनिया में जो सदगुरु ने अभियान शुरू किया है, करोड़ों वृक्षों के द्वारा धरती माता का श्रृंगार किया। बिलियंस ऑफ ट्रीज को लगा के धरती माँ, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या, धरती माँ का श्रृंगार किया है। मुझे लगता है हमारे कुछ गुरुओं को भी, खास करके साउथ इंडिया के कुछ गुरुओं को ईशा फाउंडेशन जरूर आना चाहिए, और उनको सीखना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा कैसे की जाती है। इसका एक आदर्श इंस्टीट्यूशन वो ईशा फाउंडेशन। आपो देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये पूरा अस्तित्व
ये देवस स्वरूप है और उस पूरे अस्तित्व की पूजा, पूरे अस्तित्व की पूजा सद्गुरु करना हमें सिखाते हैं। और उस अस्तित्व से अपने व्यक्तित्व को, उस अस्तित्व से अपने व्यक्तित्व को कैसे उभारें। कि हमें शूरता की आवश्यकता है। शिव की 3 प्रतिमाएं मेडिटेशन उस ध्यान मंदिर के पीछे है। कहीं हमें शूरता की आवश्यकता होती, वीरता, शूरता, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, शक्ति। तो शिव का एक रूप शक्ति, शौर्य, पराक्रम, वीरता। दूसरा है संतुलन। थॉट्स में बैलेंस, इमोशंस में बैलेंस, बैलेंस इन एक्शन, एवरीवेयर बैलेंस। समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस। दूसरा शिव का रूप संतुलन, मीन्स बैलेंस, मीन्स एक्सीलेंस, स्किलफुल लाइफ। और तीसरा शिव का रूप समाधि। समाधि मीन्स सब व्याधियों की समाप्ति और दिव्यता पूर्णता की प्राप्ति। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। We are complete in ourselves, and this whole existence is complete in His self. The biggest problem in our life is loneliness, incompleteness. We are feeling that we are incomplete, and we are searching any person और बहुत प्रकार के सत्ता, संपत्ति, साधन खोजते रहते हैं, जबकि हमें भूल जाते हैं कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। We have complete knowledge, complete wisdom. We have complete emotions, love, compassion, everything. We have complete strength, power, prosperity and peace, eternal peace. और इस शूरता, संतुलन और समाधि के शिव के तीनों रूपों को मूर्त रूप में देखना हो तो हमारे सद्गुरुदेव। जब सद्गुरु जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोलते हैं, जब सद्गुरु जी पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर एक हमें विजन देते हैं, गुरु जी का विजन क्लियर है। द पॉलिटिकल विजन, सोशल विजन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट। आप गुरु जी से किसी भी संदर्भ में टोक नहीं कर सकते। टोक तो एक बहुत हल्का शब्द है। किसी भी संदर्भ में एक महापुरुष की कैसी दिव्य दृष्टि होती है, हर एक संदर्भ में एक क्लियर विजन है, नो कंफ्यूजन। और इसलिए कहूंगा कुछ कंफ्यूज्ड आत्माओं को भी मैं थोड़ा आज आह्वान करता हूं कि उनको भी एक बार सद्गुरु को जरूर आके कम से कम एक दिन यहाँ रहना चाहिए। बहुत तरह की कंफ्यूज्ड आत्माएं सोशल फील्ड में भी हैं, रिलीजियस फील्ड में भी हैं। आप लोग तो कुछ ज्यादा ही समझदार लग रहे हैं। आदमी को दृष्टि, और दृष्टि के बिना सृष्टि में कोई सुखपूर्वक जी नहीं सकता। गीता का निष्कर्ष क्या है? नष्टो मोह
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युताः स्थितोऽस्मि गत संदेह। मेरे सारे संदेह, सारे कंफ्यूजन्स, ऑल कंफ्यूजन्स आपने रिमूव कर दिए, हटा दिए, मिटा दिए। स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इसके लिए एक समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसमें श्रुति परंपरा घटित हो गई। मुझे पता है सदगुरु जी का संस्कृत जो इनका टीचिंग प्रोसेस था उसमें इनका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है, लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं पता कितने दर्शन वेद उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन 4 वेदों में, 11 उपनिषदों में, 6 सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, इन दर्शनों में, भगवत गीता में और हमारे शास्त्रों में संस्कृत में जिन सत्यों को कहा है वो सत्य सदगुरुदेव के जीवन में अवतरित हो चुके हैं, घटित हो चुके हैं। और मैं इसलिए सदगुरु जी की कोई ये श्लाघा या उनकी प्रशंसा या कोई उनके प्रति कोई ये गौरव नहीं प्रकट कर रहा हूँ इस अर्थ में कि वो मुझसे बड़े हैं या यहाँ कोई इनको मुझसे कुछ लेना है या मुझसे इनको कुछ लेना है। नेला न देना मगन रहना। देखो तो सत्य कि मैं जब आया तो मैंने देखा गुरुजी के कह रहे थे ये 3 बात, ये तीसरी बात में तो सब कुछ आ गया। जिसने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली और दिव्यता प्राप्त कर ली उसके लिए फिर कुछ भी पाना जीवन में शेष नहीं रह जाता। यही पूर्णता की यात्रा योग है और उस यात्रा में सबको लेकर के चल रहे हैं। केवल अकेले मुक्त नहीं होना, सब आत्माओं का गंतव्य, सब आत्माओं का ध्येय, द अल्टीमेट पाथ, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट डिजायर ऑफ ऑल सोल्स, दिस डिविनिटी, दिस कंप्लीटनेस, दिस इज मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष मात्र छूटना नहीं, छूटना तो अशुभ से, बुरे गुणकर्म स्वभाव से, ईगो इग्नोरेंस से, अशुभ से छूटना और शुभ को पूर्णता में पाना। ऐसी पूर्णता की यात्रा में सदगुरु लगे हैं, सबको उस ओर ले चल रहे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आपके ही सदगुरु नहीं है, कोई ईसा फाउंडेशन वालों ने कोई गुरु जी का पेटेंट नहीं करवा रखा है। तो गुरु जी सबके हैं और सब गुरु जी के हैं। सदगुरु जी सबके हैं और सब सदगुरु जी के हैं। यही गीता कहती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मेरे साथ गीता का एक श्लोक बोलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको देखता और सब में मुझको देखता है, उसके लिए फिर जो शिव तत्व है, परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो एक क्षण के लिए भी ओझल होता ही नहीं है। ऐसे हैं हमारे सब। तो वह हमारे एक सदगुरु के रूप में, एक एल्डर के रूप में
एक पैटर्न के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, जहाँ हमारे ऊपर अत्यंत प्रेम और करुणा करते हैं, वहाँ एक बड़े भाई के रूप में हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं और पीछे से शाबाशी देकर के, आशीर्वाद देकर के, अपने अनुग्रहों से, अपनी कृपा से, अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं। और जब पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ता है, पतंजलि ब्रांड आगे बढ़ता है, पतंजलि के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि संस्कृति आगे बढ़ती है, तो उसमें मुझे लगता है इस धरती पर सबसे ज़्यादा प्रसन्नता सद्गुरु जी को होती है कि पतंजलि आगे बढ़ रहा है तो मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है कुछ लालची लोग ये भी सोचने लग जाएं आज के बाद कि शायद ईशा फाउंडेशन की कोई पार्टनरशिप तो नहीं है पतंजलि की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पतंजलि और ईशा फाउंडेशन की सच में पार्टनरशिप है। क्योंकि पतंजलि का जो पूरा प्रॉस्पेरिटी है, वो उसका मकसद ही है प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी। अर्थ से परमार्थ की यात्रा पतंजलि की है और परमार्थ की यात्रा वो ईशा फाउंडेशन की है। तो एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही ध्येय है, एक ही सोल है। जो द्वैत देखते हैं वो सब दुख में, मृत्यु में जाते हैं। मृत्यु समृत्युम आपनोति है नानाय विह पश्यति, उपनिषद का रेफरेंस है। जो भिन्न भिन्न देखते हैं ना, वो लोग दुख, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एकत्व मनुपश्यति। तो पूज्य सद्गुरु जी ईशा फाउंडेशन और पतंजलि में कोई भेद देखते ही नहीं है, ऐसी उनकी एक दृष्टि और नेक दृष्टि। तो मैं अधिक न कह के बस इतना ही कहूँगा, आदि योगी की प्रतिष्ठा के बाद मैं इधर आया नहीं था और हमारे सद्गुरु जी का तो संकल्प था ही कि मैं इधर आऊँ। एक दिबांग नाम का एक बहुत ऊंचा आदमी है और वो हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्टों में, माने जैसे शिव जी भगवान के सिर में आप जैसे चांद देखते हैं ना, ऐसे वो चांद सा प्यारा है हमारे सबका। और उसमें अप्रतिम प्रतिभा होने के साथ साथ उसमें दिव्यता भी है, उसका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और दिबांग जी मेरे से डेट लेते रहे और अंततः पूज्य सद्गुरु जी का आश्रय, उनका आशीष और आदि योगी का आज दर्शन का सौभाग्य सद्गुरुदेव के आशीषों से मिला। और सद्गुरुदेव ने पूज्य आचार्य जी से भी कहा, तो वो भी पहली बार ईशा फाउंडेशन पूज्य आचार्य वाक्षण जी आए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, योग और कर्मयोग हमारा स्वभाव बन जाए। योग हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हमारे डीएनए में योग है। डीएनए में क्या है? किसी को टेस्टिंग करवानी हो तो पैसा मैं दे दूंगा। हमारे डीएनए में योग है। योगी होना ही हमारे जीवन की नियति है, योगी होना ही हमारे जीवन का गंतव्य है। तो हम योग जो हमारा स्वभाव है, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव कर विसर्गो कर्म संजिता। योग हमारा स्वभाव है। तो योग और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, ये हमारा स्वभाव बने। और हम जैसे शिव के 3 रूप बताए, ऐसे हम अपनी चेतना को अपलिफ्ट करते जाएं और एक दिन पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधान,
पूर्णता की यात्रा में हम परम विश्रांति पाएं। और ये सब एक समर्थ गुरु के अनुग्रह से होता है। ये किसी भी आत्मा का जन्मों जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य होता है कि किसी को जीवन में एक जीवित लाइव एक समर्थ सद्गुरु, जीवन समर्थ सद्गुरु मिले। इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। वो सौभाग्य आप सब आत्माओं को प्राप्त है। ये आपका सबसे बड़ा धन है, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर पाउंड कुछ काम नहीं आते, सच्ची संपत्ति इधर। क्योंकि सद्गुरु हमें ज्ञान, संवेदना और सामर्थ्य, नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शन, डिवाइन लव, डिवाइन कंपैशन, डिवाइन पीस, अल्टीमेट इटर्नल पीस एंड पूर्णता से, कंप्लीटनेस से हमको भर देते। और ये गुरु का अनुग्रह, ये सबसे बड़ी दौलत है। द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी इज इटर्नल पीस। और उस पूर्णता से जोड़ने वाले एक समर्थ गुरु का आश्रय, आशीष, अनुग्रह आप सबको प्राप्त है। देखो, ट्रंप को भी पीस नहीं है। वो बोलता है, अभी थोड़े दिन पहले बोला, ये सब मीडिया वाला पागल है, क्योंकि मेरा 90% में अच्छा करता हूं, मेरा क्रिटिसिज्म करता है। ट्रंप बहुत अशांत रहता है। मुझे लगता है उसको भी एक बार ईशा फाउंडेशन आना चाहिए। वो आज तक मैंने उसकी मुस्कुराते भी एक भी तस्वीर नहीं देखी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी कभी मुस्कुराया करते थे। आजकल थोड़ा उनकी भी मुस्कुराहट कम हो गई। और जैसे जैसे 2019 आ रहा है तो पॉलिटिकल करंट कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। बड़ा डेंजर जोन है ये। पुतिन तो जब देखो ऐसे ही रहता है। मैंने किसी से बोला, भाई मेरे को एक मुस्कुराती भी फोटो पुतिन की लाके दिखाओ। ओहो हो, ये पावर, प्रॉस्पेरिटी और अलग अलग सेक्टर्स में साइंटिस्ट तो समाधि में रहते। न यहां कुछ भी नहीं है। ये रंग बिरंगा योगी। ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, पूरा पहाड़ हमारा है। सब रंगों में रंगा हुआ, सारी सृष्टि के रंग गुरु जी में। जो शांति, जो संतुष्टि एक योगी को होती है, वो दुनिया में किसी प्रेसिडेंट को, किसी पीएम को, किसी वर्ल्ड के पावरफुल आदमी को नहीं होती है। तो इधर तो ये अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सब कुछ है। वहां थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा। इधर बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा है। यहां छोटा छोटा, इधर ये पूरा पूरा है। तो ऐसी पूर्णता आप सबको मिले। और मोटरसाइकिल कैसा लगा बोलो?
मेरे से गुरुजी बोले, मैं बैठा हुआ था पीछे ऐसे, बोले दोनों हाथ मत छोड़ना। तो मैंने एक बार थोड़ा हाथ छोड़ा तो थोड़ा ऐसे हुआ, तो फिर मैंने गुरुजी को इधर से कस के पकड़ लिया। तो फिर मैंने हाथ जोड़े तो गुरुजी बोले आप हिलने क्यों रहे? मैंने कहा गुरु को पकड़ के रखा हुआ। जो गुरु को पकड़ के रखेगा वो दुनिया में किसी से नहीं हिलेगा। पहले आपको पहला ट्राई आपको करना पड़ता है। पहले आप गुरु को पकड़ते हैं और फिर गुरु आपको पकड़ के उठा लेते हैं। फर्स्ट इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है, और आपने तो इनिशिएटिव ले लिया। पहली बार गुरुजी की आंखों में देखा और पहली नजर में आपको प्यार हो गया। और मेरे को तो 12 साल पहले टेलीफोन पर ही प्यार हो गया था। 2006 में मैंने सदगुरु का नाम सुना, मैंने इनको फ़ोन लगाया, तो फिर बस तब से हमारा हो गया। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, गुरुवर तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और जाता है गम, जग में खुशियां हैं कम और जाता है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भर। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजारा तेरा चाहिए। महफिल में शम्मा जले ना, और मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मैं स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, ये तो बहुत बड़े लवर हैं ये। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। गाओ ना साथ। स्नेह
है प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता, दिल मेरा लगा ही रहता, हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तो जब हम मोटरसाइकिल पर बैठे थे तब हमारा दिल गुरुजी के साथ ही लग गया। तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं और ये खाली मुझको ही नहीं करते, जिसको देखते हैं उसको लगता है गुरुजी सबसे ज्यादा मेरे से ही प्यार करते हैं। और ऐसे गुरु के प्रेम में एक जन्म मिलता है माता पिता के कोख से। दिस इज फिजिकल बर्थ थ्रू मदर, थ्रू फादर। दिस इज ए मेटलिस्टिक बर्थ। ये भौतिक जन्म सबका होता है, पेड़ पौधों पशु पक्षियों का सबका होता है। गुरु की सानिध्य में आकर के हमें दूसरा जन्म, द्विजत्व मिलता है, डिवाइन बर्थ मिलता है। इसलिए हम सब के ये मात्र गुरु ही नहीं, ये हम सबके पिता भी हैं, माता भी हैं, सखा भी। ऐसा दिव्य गुरु का आश्रय आप सबको मिला हुआ है। और आजकल तो 2-3 बच्चों के लिए गृहस्थ को कम से कम 30-40 साल साधना करते हैं और 50 साल में 2-3 बच्चों को लायक बना पाते हैं। यहाँ करीब 2500 बच्चे तो गुरुजी ने यही पैदा कर दिए। ये सदगुरु जी का ये लगभग 2500 तो ये दिव्य संतानें हैं। ये दिव्य संतानें इनको आत्मज, आत्मा से उत्पन्न हुआ संतान कहते हैं। अथर्ववेद का मंत्र है। इन अथर्ववेद there is सूक्त मंत्र है ब्रह्मचर्य सूक्त। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसयन्ति देवा। 3 दिन तक गुरु अपने कोख में रखता है और 3 दिन में ही उसको दिव्य जन्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति उसको प्रदान करता है। ऐसे सदगुरु, समर्थ गुरु का, एक दिव्य गुरु का, एक योगी गुरु का, एक कर्मयोगी गुरु का, एक महान गुरु का आप सबको सानिध्य प्राप्त है। हमको भी बीच बीच में प्रत्यक्ष और परोक्ष तो हमेशा ही सदगुरु का आश्रय, उनका प्रेम प्राप्त है। उससे मैं ही नहीं, पूज्य आचार्य बागशन जी नहीं, पूरा पतंजलि योगपीठ बहुत ही अपने आप को अभिभूत, अनुग्रहित अनुभव करता है। इनके आशीषों से हम अपने आप को अभिषिक्त अनुभव करते हैं। बस इतनी सी बात कह के अब समय शुरू होता है आचार्य जी का। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफ़ी है। बहुत दिनों के बाद आपको इतना आनंद मिला होगा। आपको तो आनंद मिला, पर मैं देख रहा था सदगुरुदेव जितना खिलखिला करके और प्रसन्नता से हंसे होंगे, शायद आपने पहले मुश्किल से कभी देखा होगा। ये भरे रहते हैं आचार्य जी, पूरे भरे रहते हैं हमेशा। आज जैसा नहीं, आज जैसा नहीं, और इतनी थोड़ी देर में इतनी बार भी नहीं। पूरा भरे रहते हैं। मान लिया,
आज चलो, तो आप देखते आज थे, तो दंत हमने- आज तो दंत कांति के लिए अब तो अब तो आपको मानना पड़ेगा, ये दंत कांति मुस्कुराहट पहले नहीं थी, आज है, गुरुदेव ने स्वयं कह दिया। इसीलिए, क्योंकि यह पवित्र स्थान है, आज परम श्रद्धेय वंदनीय भारतीय संस्कृति परंपरा को मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आधुनिक समय है, जो वर्तमान युग है, उस युगानुकूल हमारी परंपरा को लोगों में पहुंचाने के लिए, उन परंपराओं का जो अक्षुण्ण रूप है, उस रूप के साथ में ऐसा प्रयास करने वाला ऐसा महामानव, क्योंकि सत्य धर्म का तो बोध हो, परंतु जीवन में उस सत्य को पाने के लिए बहुत भटकना भी न पड़े, बिना भटके सत्य और यथार्थता का बोध कराने वाले ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आज परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, जिन्होंने उन जटिल और कठिन योग की विधाओं को, क्रियाओं को गुफाओं से और कंदराओं से उतार करके मनुष्य के जीवन में और लोगों के जेहन और दिमाग में घुसा दिया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। योग संस्कृति और कर्म का यह संगम, यह अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। और इसलिए मैं कह रहा था, श्रद्धेय स्वामी जी बोल रहे हों, श्रद्धेय सद्गुरुदेव हंस रहे हों, ये तो जरूर आपने पहले नहीं देखा होगा। बात यह थी, महापुरुष बिना हंसे भी सब कुछ दे देते हैं, पर कभी हंसने हंसने में फ़र्क होता है। यहाँ आपकी मुस्कुराहट के लिए हंस रहे थे, तो यहाँ उस संस्कृति के वैभव को ये दो महापुरुष स्थापित कर रहे थे। उसकी अंतर में जो आपकी अंतर में जो उसकी शीतलता थी, उससे आपकी हंसी और दिव्य और महान बन रही थी। हम इसको समझें। महापुरुष हंसते हैं, हमको ऐसा लगता है कि उनकी वह प्रसन्नता है, उनकी तो वह तो हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं। वह आपकी प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए वह प्रसन्न होते हैं। योगी तो तपते हैं, हर क्षण तप करते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष वह संसार के लिए होता है। दुनिया इसलिए दुखी होती है, दुनिया इसलिए रोती है, दुनिया भी संघर्ष करती है, क्योंकि वह संघर्ष वह उनके अपने लिए होता है। महापुरुष भी संघर्ष करते हैं, वह भी तपते हैं, पर वह संघर्ष अपने लिए नहीं, वह संसार के लिए होता है। इसलिए संघर्ष करते हुए भी कोई मुस्कुराते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी अभी कई नेताओं की, व्यापारियों की, दुनिया में जितने भी देखिए, वहाँ सब कुछ होने के बाद में भी ऐसा तो कुछ है जो उनके पास नहीं है, जो उनकी चेहरे की प्रसन्नता, शांति और आनंद को उसने दूर किया हुआ है। पर संत कुछ तो ऐसे हैं, कोई स्तुति करे, निंदा करे, निंदन्तु निधि निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नयत पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि ऐसा तो कुछ है
लोग निंदा करें, स्तुति करें, परेशान करें, तो भी उनकी प्रसन्नता और मुस्कुराहट को कोई कम नहीं कर सकता। वह तप और साधना संसार की पीड़ा को देख करके उस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने आप को तपाने की साधना। इस परिसर में घुसने के बाद में यह स्वतः ही आप महसूस कर सकते हैं कि परम पूज्य वंदनीय शुद्ध सद्गुरुदेव ने संसार को संतापों से मुक्त करने के लिए अपने आप को कितना तपाया है, यहाँ घुसने पर आदमी महसूस कर सकता है। और इसीलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, गुरु बनना नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। गुरु बनना नहीं पड़ता है। गुरु तो अपने तप से बन कर के तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। हमको तो शिष्य बनना पड़ता है। जो जितना अच्छा शिष्य होता है गुरु से उतना ही ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। इसलिए ध्यान रखना, यदि तुम ज़्यादा ना सीख पाए, ग्रहण ना कर पाए, तो इसमें गुरु का दोष नहीं है, तुम्हारी पात्रता का दोष है। इसलिए अपनी पात्रता को बनाने का प्रयास करना। महापुरुष तो अथाह सागर, अथाह ज्ञान का भंडार, अथाह आध्यात्मिक संपत्ति को लेकर के तुम्हें लुटाने के लिए, तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। पर मेरा बर्तन यदि छोटा हो तो मेरे भाई उस बर्तन में तो उतना ही आएगा। इसीलिए अपने बर्तन को बड़ा करना। उपनिषद में कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जहाँ बहुत अधिक पाने की लालसा हो वहाँ आनंद का भी कोई अंत नहीं है। उस अनंत आनंद को पाने के लिए सद्गुरु के चरणों में आकर के उस अनंतता का अनुभव आप करें, जीवन को आनंदित करें। हमारी शुभकामनाएं हैं। सद्गुरुदेव का आदेश भी था, हमारी इच्छा भी थी, पर उस इच्छा को जब स्वयं प्रेरणा मिल जाए तो पूरे होने में कौन रोक सकता था। तो आज यहाँ आकर के मैं भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, उपकृत हूँ, कृतज्ञ हूँ और आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और आपके तप के लिए, पुरुषार्थ के लिए और आपकी जो संवेदना है इस संस्कृति की उत्थान के लिए, आदि योगी की 112 फीट प्रतिमा का एक भव्य स्वरूप के साथ में 112 वर्ष के अंदर अंदर इस भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होने की संकल्पना के साथ जो आपने यह पौधा का रोपण किया है वो अवश्य पूर्ण होगा, हमें ये विश्वास है। उसी धारा को आपने दक्षिण के समुद्र के किनारों से उस अभियान को शुरू किया है, तो श्रद्धेय स्वामी जी ने हिमालय की चोटियों से उस अभियान को जोड़ने का काम किया है। तो यह हमारा उत्तर और दक्षिण भारत जुड़ेगा तो भारत उस दिन पूरी दुनिया की वैभवशाली राष्ट्रों में, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रों में अग्रणी होगा। इसमें किंचित मात्र भी शंका और संशय नहीं है। इसलिए आप दोनों महापुरुष अलग नहीं हैं, एक हैं। आपकी दिव्यता, आपकी महानता, आपकी सरलता, आपकी सहृदयता, एक बच्चे के जैसा बोल रहा था, दूसरा बच्चे के जैसा एक्टिंग कर रहा था, ये महापुरुष की महानता है। इस महानता को, इस बच्चे को अपने अंदर उतार लो तो आप भी महान बन जाओगे। I'm taking the liberty of inviting Acharya Balakrishna Ji. One thing is, this year it's all fixed up, but 2019, the Insight, which is a business meet, where we have had people like Ratan Tata, Narayan Murthy, K.B. Kamath and many others. Almost all the top corporate leaders have been here. Next year, he is coming here as the corporate leader of this nation. देखो, हम तो इन बाबाओं के बच्चे हैं।
तो जब बाबाओं के बीच में बैठेंगे तो वही वाली बात करेंगे। अब जब आप बड़े बड़े टाई वाले और शूटेड बुटेड को लाओगे तो उनके भी छक्के छुड़ाना हमको आता है, तब उनके साथ तब भिड़ लेंगे। तो इसलिए अब यही वाला रूप देख लो, वही अच्छा है, वो वाला ना देखना पड़े। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। एक्चुअल में सिर्फ हर्ब्स के विषय में बात करूँगा, ट्रीटमेंट के विषय में। पूरे वर्ल्ड में लगभग 3,80,90,000 के लगभग टोटल प्लांट्स हैं। बॉटनिकली अभी तक जो प्लांट लिस्ट हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख। उन 4 लाख पौधों में से अभी तक पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ काम हुआ है, अमेरिकन कंट्रीज़ में काम हुआ है, चाइनीज लोगों ने काम किया है। दुर्भाग्य से आयुर्वेदा, सिद्धा, ये हमारी बहुत ही प्राचीन पद्धति है। फिर भी सिर्फ यदि आप वर्ल्ड में जो मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें 1100 प्लांट्स की लिस्ट है आयुर्वेदा या सिद्धा के नाम पर इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट में। बट यदि आप चाइना के देखेंगे लिस्ट, 13,500 प्लांट्स की लिस्ट है मेडिसिन प्लांट्स की लिस्ट में। ये एक बहुत ही शॉकिंग और हमारे लिए दर्द का दुख पीड़ा देने वाली बात थी। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमने काम शुरू किया और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज पतंजलि योग पीठ ने फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली बार यह प्रयास किया कि आज हम करीबन 72,000 प्लांट्स की चेक लिस्ट बनाई है हमने जो मेडिसिन यूज की है। तो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का बड़ा काम पतंजलि कर रहा है। आज हम टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनिमल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने का आयुर्वेद का काम पतंजलि, मेरे साथ में करीबन 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट उस काम में हेल्प कर रहे हैं। वो काम भी पतंजलि कर रहा है। वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, हायर एजुकेशन सबको जोड़ करके संस्कृत और मॉडर्न एजुकेशन के साथ में यूनिवर्सिटी वगैरह का काम भी पतंजलि बड़े स्तर पर कर रहा है। और हम आज पहला हर्बल म्यूजियम, पहला हर्बल जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, क्यू गार्डन लंदन में बॉटनी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो कैनवास पेंटिंग्स होती हैं, मेडिसिन प्लांट्स की जो पेंटिंग्स होती हैं, करीबन 250 ईयर्स में उन्होंने करीबन 11,000 पेंटिंग्स, कैनवास पेंटिंग्स वहाँ बनाए गए पूरे वर्ल्ड से इकट्ठा कर करके। आपको सुन करके खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता है। पूज्य सद्गुरुदेव स्वयं अपनी आंखों से देख करके आए हैं वहाँ पर पूरा नहीं देखा है, हाँ थोड़ा सा देखा है, थोड़ा थोड़ा, बाकी अभी दिखेंगे। अभी तो आप लोगों को भी लेके जाना, गुरुदेव ने कह दिया है कि इकट्ठे मत ले जाना, थोड़ा थोड़ा ले जाओ, क्योंकि पता चला कि तुम सब हिमालय में चढ़ गए और वापस नहीं आए तो गुरुदेव ने कह रखा कि अभी नेक्स्ट ईयर से ट्राई करेंगे। पतंजलि योगपीठ के सारे सन्यासी ब्रह्मचारी करीब वहाँ जो हैं वो सब इधर आएंगे और ईशा वाले उधर जाएंगे। 5-7 दिन के लिए। हाँ, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो आपको सुनकर के खुशी होगी, लगभग 30,000 कैनवास पेंटिंग्स प्लांट्स की पतंजलि की हमारे लाइब्रेरी में हमने इकट्ठा कर, यानी पतंजलि वर्ल्ड में फर्स्ट है। टोटल अभी तक वर्ल्ड की जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो चेक लिस्ट बनी है नहीं है, मोर देन मैक्सिमम 20,000 के लगभग, बट पतंजलि ने बनाया 72,000। और पेंटिंग्स के लिए कैनवास पेंटिंग की जो मैंने बात करी 11,000 क्यू गार्डन में है, हमने करी 30,000। तो इस लेवल पर पतंजलि काम करता है। बाकी प्रोडक्ट्स तो थाउजेंड्स प्रोडक्ट हैं। आज गुरुदेव ने दंतकांति स्माइल जो प्रसन्नता दी है, उनकी स्माइल के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। विदेशी कंपनियों ने क्या कहा कि तुम चारकोल यूज़ करोगे, तुम टर्मरिक हल्दी यूज़ करोगे, उससे दांत खराब हो जाएगा, वो अनसाइंटिफिक है, वो ऐसा है।
हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो बंद करा दी। उन्होंने कहा करो कोलगेट, केमिकल करना सिखा दिया। जब बाबा जी की दंतकांति और गुरु जी की जब स्माइल जब बड़ी सी आईने शुरू हुई, उनको कहना पड़ा कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है? अभी तो प्रसाद में भी, वो देवी जी के प्रसाद में भी हमको नीम के पत्ती मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे तो प्रसाद में भी नीम है, तो हमारे तो प्रसाद में भी नीम है, पर तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम कहाँ से आया? क्योंकि दंत कांति पतंजलि ले आया, इसलिए आया। ध्यान रखना, इन विदेशी कंपनियों के लिए इंडिया सिर्फ मार्केट है, मार्केट, पर हम इस भारतीय संस्कृति में जीते हैं, इसलिए इंडिया मेरे लिए मार्केट नहीं है, मेरे लिए यह मेरी फैमिली है, इसलिए हम फैमिली की चिंता करते हैं। ये ध्यान रख लेना, इसलिए हम काम करते हैं। हमको सिंगल पेनी, एक पैसा, मैं भी देख रहा था गुरुदेव, इंदिरा नुई में आज सैलरी पड़ा था, महाराज जी को दिखाया, वो 320 करोड़ की पैकेज है उसकी। बाबा जी मेरे को 320 रुपीज नहीं देते। अच्छा ये देवी दे दें, देवी दे दे तो मैं करूंगा क्या? ये कपड़े भी ज्यादा दे जाते हैं तो थोड़े थोड़े मेरे को बांटना पड़ता है, डोनेशन में मिल जाता है ना, दान में। तो इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी संस्कृति की परंपराएं हैं, और मजेदार, अभी उन्होंने एक वेद शक्ति निकाला, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। वेद शक्ति में क्या कहा कि इसमें एलोवेरा है, चलो समझ में आती है। बोले इसमें आंवला भी है, चलो जी अच्छी बात है। इसमें तुलसी भी है। हम सब हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जानने वाले। हिंदू संस्कृति में क्या कहा जाता है कि तुलसी को चबाना नहीं, दांतों से नहीं चबाना होता है। क्यों? हम कहते हैं ना, दांतों से तुलसी के पत्ते को चबाने से पाप लगता है। पता है हमारे ऋषियों ने क्यों कहा? क्योंकि तुलसी जितनी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, वायरल डिजीज हैं, या दूसरी तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर से लेकर के एलर्जी से लेकर के अस्थमा तक बहुत लाभकारी है, बट वो दांतों के लिए हार्मफुल है। दांतों का पत्ता, यदि तुलसी का पत्ता डायरेक्ट दांतों में यदि आप यूज करते हैं तो दांतों को वो कैल्शियम को कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है। तो तुम्हारे दांतों के लिए तुलसी भूल गए कि तुलसी कहाँ डालना था, क्योंकि उनके पास कोई आचार्य बालकृष्ण जैसा वैद्य तो है नहीं। तो मैंने जब बोलना शुरू किया, मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अब एड में से वो तुलसी तो हटाया नहीं, ऊपर तो रखा हुआ है जब पिक्चर में, बट बोलने में एलोवेरा आंवला सब बोलते हैं, तो तुलसी बोलना वो मेरे दिवांग भाई बैठे हैं, इनको पता है कि ऐड में जो कंटेंट होता है उसको डिलीट कर सकते हैं, पर पिक्चर को चेंज करने के लिए पूरा रीशूट करना, दोबारा शूटिंग करना पड़ता है, तो शायद जल्दी वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए भरोसा मत करना, इसलिए मत करना, या तो वो पहले झूठे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हल्दी भी यूज नहीं करना, नीम भी यूज नहीं करना, नमक भी यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना, चारकोल भी यूज नहीं करना। अब कहते कि उसको यूज करो, तो या तो पहले झूठे थे या तो अब झूठे हैं। वो पहले भी झूठे थे और अब भी झूठे हैं। तो इसलिए बस इतनी ही बात है, तो उसकी बात कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा वातावरण है, सदगुरुदेव ने बहुत तप करके, तब से श्रद्धेय स्वामी जी तो कह रहे थे कि 2500 बच्चे पैदा करें। मैं कहता हूँ वो 60 लाख बच्चे भी बाबा जी के पैदा किए हुए हैं, जो पहाड़ों पे दिख रहे हैं ना आपको, पेड़। कौन से नहीं समझ में आए? वो पेड़, जंगल, जो हरा भरा जंगल, वो भी तो बाबा जी के बच्चे हैं, सदगुरुदेव के। तो इसीलिए पूरी नई दिव्य सृष्टि। संत महान होते हैं, उनकी सोच और दिव्यताएं बहुत गहरी होती हैं। तो इस दिव्य वातावरण में आप प्रकृति का आश्रय लें, संस्कृति का आश्रय लें, महापुरुषों का आशीर्वाद लें। और दिव्य स्थान पर एक बात और बताना चाहता हूँ, सदगुरुदेव ने एक बहुत अच्छा काम किया है जो स्थान के लिए बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि जो मरकरी है
जो पारद के शिवलिंग वहाँ स्थापित किए गए हैं अंदर सूर्य कुंड, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड में, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। शिव का अंश माना गया है मरकुरी को, पारद को, और ताम्र के अंदर, कोफर के अंदर उसको संग्रहित करके रखा हुआ है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। उसके स्पर्श मात्र से हम आपको शुद्ध पारद की गोली भी बना के बाद में दे सकते हैं, सदगुरुदेव कहेंगे तो हम बना देंगे। उसको खाने की जरूरत नहीं पारे को, यदि उसमें से स्पर्श होकर के कोई चीज़ आ जाती है, वो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में वो सक्षम है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये साइंस है। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी कर लूँगा गुरुदेव आपसे, सदगुरुदेव, या तो आप करना या तो हमको परमिशन दे देना, हम कुछ कर लेंगे। क्योंकि जितनी चीज़ें आपने बनाई हैं, जैसे प्रार्थना के लिए गर्भगृह का जो निर्माण किया, वो हमारी संस्कृति का एक प्राचीन साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है कि एक ओपन स्पेस पे एक बाहर बैठ करके आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका जो ऑरा का जो स्तर है, जो आपका कंसंट्रेशन का या आपकी स्पिरिचुअलिटी का, पवित्रता का जो स्तर है, और जहाँ वहाँ बैठेंगे उसमें निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। इसका साइंटिफिक हमको रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम वो आराम से किया जा सकता, फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। इसी तरह से गुरुदेव ने जितनी चीज़ें यहाँ पर करी हैं, बच्चों के लिए स्टडी के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुए हैं, बाकी चीज़ों में जो चीज़ें हुए हैं, तो क्योंकि मेरे को पता है यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि मेरे पतंजलि में जितने पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा फौज यहाँ पर है। तो आप लोग मिल करके उसमें मैं साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल है रिसर्च के लिए, उसको किस तरह से करना है, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा, मेरी टीम हेल्प करेगी। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका फटाफट आप डॉक्यूमेंटेशन करिए, फटाफट आप रिसर्च करिए, दुनिया को बताइए। सिर्फ हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, हम साइंटिफिक भी हैं। यह मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हम साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वह कोई रूढ़िवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंडवाद नहीं है। वह एक विशुद्ध विज्ञान है, साइंस है, और मानवता के लिए अति आवश्यक चीज़ है। वो प्राचीन काल में भी उतने महत्वपूर्ण था, वर्तमान के लिए भी इतना ही जरूरी है, और आने वाले भविष्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। इस बात को, साइंस क्या है, पहले इतना बड़ा साइंस था, इसलिए तो हमारे ऋषियों ने ये सब किया। बस उसको मैं एक शब्द में हिंदी में बहुत प्यारी से लाइन में कह देता हूँ कि दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने का काम आज की भाषा में उसको साइंस बोलते हैं। उतना ही काम आपको करना है। दुनिया में अपनी भाषा में तो आप समझा रहे हो, बस दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए अच्छे रिसर्च जर्नल्स में टॉप लेवल के अच्छे इम्पैक्ट वाले उसमें पब्लिश्ड हो जाए। इस तरह से आपका इसका डॉक्यूमेंटेशन करिए, इसका एविडेंस इकट्ठा करिए, और ये बहुत अच्छा जाएगा। और यह संदेश, यूँ तो सदगुरुदेव दुनिया के कोने कोने में हैं, पर यदि कोई प्रश्न करे तो उनके उत्तर तो स्वयं हैं। एक बात इनकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, आप क्वेश्चन आप कुछ करते हैं, आंसर और कुछ देते हैं। इनको जो पूछे वही उत्तर देते हैं। तो ये एक अच्छी सी बात मुझे लगती है। मैं जब कभी आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पूछो वह उत्तर वही दे सकता है जो सही हो। ठीक है, तो इसका मतलब सही है, आप लोगों ने सही व्यक्ति को पकड़ रखा है। बस पकड़े रहना, आपका भला हो, कल्याण हो। और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय
नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः